we will discuss redox reactions in terms of electron transfer reactions. We have discussed redox reactions, and we have discussed redox reaction. What is meant by redox reaction? What is meant by oxidation? What is meant by reduction? The classical idea. What is the classical concept of reduction and oxidation? We have discussed that. Now we'll discuss redox reactions in terms of electron transfer. So we'll take an example. This is Na plus Cl. So this is a reaction between sodium and chlorine. Gives us sodium chloride. This reaction can be considered as two separate steps. One step involves the loss, one step involving the loss of electrons, and the other step involves the gain of electrons. Like this, if I take sodium from the reaction, this sodium, it gives Na plus electrons, plus electron. So step 1, step 2, यहाँ पर chlorine है, it gives us Cl minus plus electron. So I will get, sorry, इसको हम करेंगे 2 electrons add, so I will get Cl minus plus electron. So this is 2 times Cl. So this is the first step is sodium, यहाँ पर ये sodium plus और electron loss करता है ये sodium, chlorine जो यहाँ पर ये electron gain करता है, and we get Cl negative ion here. So this is the step 2. Now the process which involves loss of electrons by the substance. अगर हम इसको थोड़ा स्टडी करेंगे, इसको हम करेंगे ऑब्जर्व. यहाँ पर substance करता है electron loss. So the process which involves the loss of electrons by the substance is known as oxidation. उसको हम बोलते हैं oxidation. And the substance is said to be oxidized. जो ये substance था ये हम बोलते हैं ये oxidize हो गया, ये oxidize हो गया. Exactly this substance जो ये वाला substance है यहाँ पर ये chlorine, it involves gain of electrons. Now the process which involves, जिस प्रोसेस में एक सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है, प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन, एंड द सबस्टेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड. हम बोलते हैं ये सबस्टेंस रिड्यूस हो गया. सो यहाँ पर हम मानते हैं ये वाली प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, ये वाली प्रोसेस रिडक्शन है स्टेप. यहाँ पर सोडियम होता है ऑक्सीडाइज एंड क्लोरीन होता है रिड्यूस. अब यहाँ मानते हैं कि दिस इज, इसको हम बोल सकते हैं ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन है, यानी स्टेप 1 है, हाफ रिएक्शन है. एक्चुअली दिस रिएक्शन, इसका ये हाफ रिएक्शन है. दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. सो दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है. सो वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ रिएक्शंस, रिडक्शन हाफ रिएक्शन and oxidation half reaction. So when this oxidation half reaction and reduction half reaction is added, we get a complete redox reaction. So Na plus Cl2 gives NaCl is actually a redox reaction. ये redox reaction. So we already know that when oxidation and reduction reaction takes place or occurs simultaneously, the reaction is known as the reaction is known as redox reaction. उसको हम बोल सकते हैं redox reaction. One more point here. One more point. यहाँ पर जो ये इस रिएक्शन पे अगर आप देखेंगे ना, सोडियम और क्लोरीन को हम देखेंगे, इसी रिएक्शन को हम करेंगे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे. We will discuss two more terms यहाँ पर. Reducing agent and oxidizing agent. So these are two related terms. The substance which is oxidized, जो substance redox reaction में oxidize होता है, acts as reducing agent. So substance oxidized, which is oxidized acts as a reducing agent.
सो इट डोनेट्स, एक्चुअली इसका ये इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, ये इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू अदर सबस्टेंस, टू द एलिमेंट विद विच इट इंटरैक्ट्स, जिसके साथ ये इंटरैक्ट करता है उसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये दिस सबस्टेंस. So we can now define a reducing agent is a substance. A reducing agent is a substance which is oxidized, and it donates electrons to other substance with which it interacts, जिसके साथ ये interact करता है और उसको ये करता है reduce, and it reduces that substance, उसको ये reduce करता है. फर्स्ट यहां पर मैं बताऊंगा आपको, यहां पर एग्जांपल है सोडियम की. सोडियम हियर इज ए रिड्यूसिंग एजेंट. व्हाई? बिकॉज इट एक्चुअली इटसेल्फ इट इज ऑक्सीडाइज्ड, खुद ये ऑक्सीडाइज होता है और इलेक्ट्रॉन करता है डोनेट टू क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करता है क्लोरीन को. सो क्लोरीन को ये रिड्यूस करता है. सो देयरफॉर इट इज सेड टू बी रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं इसको. सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है सबस्टेंस जो होता है इन ए रिडॉक्स रिएक्शन विच इज रिड्यूस्ड, जो खुद रिड्यूस होता है, खुद रिड्यूस होता है. इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करता है. एंड जब ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करता है एंड इट ऑक्सीडाइजेस द सबस्टेंस विद विच इट रिएक्ट्स, विद विच इट इंटरैक्ट्स, जिस सबस्टेंस के साथ ये इंटरैक्ट करता है उसको ये करता है, उसको ये ऑक्सीडाइज करता है. देयरफॉर इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सबस्टेंस विच इज रिड्यूस्ड and it accepts electrons, from the substance with which it interacts and oxidizes that substance, उसको ये ऑक्सीडाइज करता है. यहां पर जो एग्जांपल हम लेंगे, यहां पर क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन जो है it acts as oxidizing agent because ये खुद होता है रिड्यूस, जो सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको ये करता है एक्सेप्ट. सो देयरफॉर इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट गेट्स रिड्यूस्ड. जब ये एक्सेप्ट करता है दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड होते हैं, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट गेट्स रिड्यूस्ड. सो देयर इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जब ये खुद रिड्यूस होता है दूसरे को ये ऑक्सीडाइज करता है, उसी की बुनियाद पे उसको बोल सकते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सो इस रिएक्शन में सोडियम एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्लोरीन करता है एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब हम इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम इसको ऑक्सीडेशन को हम याद रख सकते हैं. सो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस बाय एनी स्पीशीज. रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ द प्रोसेस ड्यूरिंग विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस by any species. Reducing का मतलब है it is a substance which reducing मतलब है ये substance है reducing agent which donates electrons, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. Oxidizing agent is a substance which accepts electron, जो accept करता है electrons. फर्स्ट अब अगर आपको कभी पहचान हो अगर रिएक्शन, आपको ये चार जो हमने यहाँ पर डिस्कस की चार टर्म्स अगर आपको पहचानना हो रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में, लेट अस टेक अ रिएक्शन बिटवीन दिस जिंक मेटल. आई विल टेक अ रिएक्शन बिटवीन जिंक मेटल, ये मेटल है, प्लस कॉपर नाइट्रेट. सो कॉपर नाइट्रेट में होंगे कॉपर आयन्स होंगे उसमें. सो दीज आर द आयन्स फ्रॉम कॉपर, ये एक्वस सॉल्यूशन होगी. सो जिंक मेटल ये कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, उसमें कॉपर आयन्स होंगे. आई विल गेट Zn2 प्लस कॉपर, ये मेटल. आपको इसमें से पहचाना होगा. अगर मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पर दिस जिंक, आप देखो यहाँ पर
ये जिंक जो है ना, यहाँ पर जिंक, यहाँ पर इसको बन गया Zn2, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर, पॉजिटिव चार्ज तब चढ़ता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। सो इसको होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यानी जिंक को जब बनता है Zn2+, इसका मतलब है ये प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन। एग्जैक्टली यहाँ पर कॉपर 2+ है, उसका मतलब है उसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, फिर बन गया उसको कॉपर, ये इस फॉर्म में आ गया। सो इसको हो गया रिडक्शन, इसको हो गया रिडक्शन, क्योंकि जब उसने दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसकी चार्ज दो पॉजिटिव खत्म होता है, सो ये बनता है कॉपर। सो इसको हो गई रिडक्शन। अब यहाँ पर ये जिंक जो है, इसको हो गई ऑक्सीडेशन। सो देयरफॉर इट, ऑक्सीडेशन का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। सो इलेक्ट्रॉन, आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दैट इज सेड टू बी रिड्यूसिंग एजेंट, वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। इसका हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, रिडक्टेंट बोलते हैं इसको, रिडक्टेंट कभी बोलते हैं इसको, रिडक्टेंट, रिडक्टेंट। एग्जैक्टली यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर 2+ जो है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इलेक्ट्रॉन गेन किए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, सो इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट भी, ऑक्सीडेंट बोलते हैं इसको शॉर्टर में। सो नाउ वी आर एबल टू नाउ define oxidation. Oxidation is a process which involves loss of electrons by the substance. Reduction is a process which involves gain of electrons by the substance. In a redox reaction, redox agent is which actually donates electrons to a substance with which it interacts, and oxidant agent is a substance which accepts electrons from the substance with which it interacts. Okay.